कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न साखूं। तू ठाकर ऊंच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण न साकों। तू ठाकर ऊंच भगवाना। जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी सरबत साध संगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। बड़े भाग हन आप दे जो गुरु चरना में जुड़े हो ते जप रहे हो सतनाम श्री वाहे। आओ जिस तरह मानयोग सकत्तर साहब ने बचन कीते, जो कल रोज तो पावन बानी श्री सुखमनी साहब जी दी विचार आरंभी सी। आओ जुड़िए। पहली अष्टपदी दी विचार चल रही है। रहाव दी पंक्ति तक कल विचार हुई सी। आओ उस तो अगे अष्टपदी आरंभ होंदी है। पहला पदा रहाव ते समाप्त करके दूसरी पौड़ी। आओ पहले मूल पाठ करिए, फिर जैसी जैसी मेरे गुरुदेव कृपा करेंगे जपो प्यार नाल। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै। प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै। प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै। प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग। सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ का सिमरन साध कै संग। सर्व निधान नानक हर रंग। इस पावन पौड़ी विच मेरे गुरुदेव प्रेरणा दे रहे हैं कि जो भी सिमरन विच जुड़ेगा, भाव उस प्रभु के चरणों में जपदे जपदे अपनी लिप जोड़ लेगा, उसकी याद अंदर बस जाएगी। उसकी अवस्था विच की बदलाव आएंगे।
ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਪਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਧਾਰੋ। ਨਾਨਕ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੁਖਵਾਕ ਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਕਾਂਖੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦਸਤਵਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਕਾਂक्षा, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਹੈ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਪੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਖਾਲੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਵ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋੜੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਹੀ ਯਾਦ ਬਣ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਸ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਘਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਦੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਫਿਕਰਾਂ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋੜਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ।
जीवन जिसका आनंद हो गया उन्होंने परमानंद ही मिलेगा। प्यारी साध संगत, साडा जीवन अजे आनंद नहीं बनया, पढ़ते असीं रोज़ हाँ, अगे चल के विचारांगे। प्यारी साध संगत, प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, वो फिर गर्भ जोन दोबारा जन्म मरण के गेड़े च नहीं आते। प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, जीवन के दुख तो दूर होंदे ही नहीं। प्रभु की याद है ही ऐसी। ये दुख की ने, ये मन की अवस्था है, तो जिसका मन उसके चरणों नाल विन्या गया उन्होंने फिर काहदा दुख, उहदे लई ते दुख दारू हो गया। दुख दारू सुख रोग भया, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, जिहड़ा मौत का डर है वह भी खत्म हो गया। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, वो तिन्ना कालों तो उच्चे उठ गया और काल लीन हो गया। उसलिए काल फिर उसका विनाश नहीं कर सकता। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, एक ने बाहरले दुश्मन जिहड़े साडा बुरा मंगदे ने, एक साडे अंदर बैठे ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, जिहड़े साडी बिरती नूं टिकन नहीं देंदे, जिहड़े मन नूं अडोलता विच नहीं आन देंदे, उन्हां दा भी फिर नाश हो जाता है। प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, वो दूर हो जाते ने। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, फिर कोई रुकावटां नहीं आंदियां, कोई जीवन च ऑब्सटिकल्स नहीं आते। प्रभ कै सिमरन कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। दिन रात वो जाग के असे बेहोशी की नींद सुते पे हैं। प्यारी साध संगत, जो नहीं खान जो वो खा रहे हैं, जो नहीं बोलन जो वो बोल रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि कभी डायरी लैके ना, जिन्ने को मन च विचार रोज़ उठते ना नोट करी चलो, एक दिन 5-7 दिन बाद ये अवस्था बनेगी, अपने आप नाल ही घृणा हो जाएगी। ये की हो रहा है, मैं की सोच रहा, फिर ऐसा क्यों सोच रहा? क्या गुरसिख की सोचनी है? जो जपदे जपदे बिरती जुड़ती साध संगत, इस सुभावक जीवन च बदलाव आते हैं। बट शर्त एक है कि जो इत्थे सुनिया है, जो गुरु का उपदेश इत्थे ग्रहण किया है, उसनों जीवन ही चल के अमल च लिया, नहीं तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। आए मत्था टेकिया, अद्धा घंटा कीर्तन सुनिया, लंगर छकिया तो करो करी, व्यवहार तो जीवन का उत्थे ही खड़ा है। तो जीवन जितने दुख ने, प्यारी साध संगत की गल याद रखना, ये साढ़े अपने कीते कर्मां की ही परछाई है। अपने कर्म ने, सुख भी कर्मां की परछाई है, दुख भी कर्मां की परछाई है। पर साडा जो स्वरूप है वो की है? कल यह जिक्र बड़े टूक मात्र इशारे बस बल होया सी, इसमें विचारो प्यारी साध संगत। पहले सब तो पहली जरूरी चीज़ है अपने आप को समझना कि मैं कौन हाँ। जद तक साढ़े अंदर यह प्रश्न नहीं उठया कि मैं कौन हाँ, मेरा वजूद की है, मेरे जीवन च आन का मकसद की है, उदों तक असें धर्म की दुनिया में प्रवेश नहीं किया। एक गल दृढ़ कर लेना, मैं शरीर नहीं हाँ। शरीर एक व्हीकल है जो मैनू पार ब्रह्म परमेश्वर वालों मिलया है। और यह मनुष्य जीवन जो है, कर्मी आवे कपड़ा, साढ़े कीते कर्मां दे करके सानू यह मनुष्य जीवन प्राप्त होया, बड़ी वड्डी दात है। अदरवाइज तुसी बाणी गोह नाल विचारोगे ना, इस देही को सिमरें देव, देवते भी तरसदे ने मनुष्य होने, क्योंकि भी अल्टीमेट नहीं है। देव जोनी भी अल्टीमेट नहीं है, वो भी भोग जोनी है। कर्म जोनी केवल मनुष्य जोनी। पुनः का फल है स्वर्ग, पुनः का फल है देवलोक। कर्म पूरे हुए वापस मात लो। ये मनुष्य जीवन च सानू प्राप्ति है। साढ़े अंदर ऐसा एक सिस्टम है, इंटैलैक्ट सिस्टम, जिदे द्वारा असे सत्य ते असत्य की विचार कर सकते। विवेक बुद्धि, विवेक
कल भी विचार हुई सी, विवेक किनू कहंदे ने? जो सच ते असच नूं वखरा कर। हंस की बड़ी महिमा, हंस पंछी की बड़ी महिमा बाणी च। संतां की तुलना हंस नाल कीती, क्यों कीती? हंस की जीवा ते एक ऐसी कुछ कुदरती चीज़ है, एक खटास है, वो जो दुध की चुंझ मारदा है ना, दुध फट जाता है, दुध वो पी लैंदा है, पानी पानी छोड़ देना। इनू कहंदे ने विवेक। सत ते असत, सत नूं ग्रहण करना, असत नूं त्यागना। बाणी तो कह रही सुपने जो संसार, तो असीं संसार नूं पकड़ के बैठे। तो फिर वही है ना, जैसे सुपना देखिया कोई तो उसे नूं पकड़ के बह गए भी यही सुपना सच। भगत रविदास जी का बड़ा सुंदर शब्द आता इस प्रथाएं, कहते ने माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जैसा मनी बैठे हो ऐसा है नहीं, यही अविद्या है, कलेश का कारण है भी अविद्या। जो मनी बैठे हो है नहीं। छोटी जी वर्डली एग्जाम्पल ले लो, किसी ने हल्के रंग की शर्ट या टर्बन या दुपट्टा पहन किसी ने लिया होवे तो असी कहने स्काई ब्लू कलर है, स्वाभाविक है ना, स्काई ब्लू है। मतलब की तुलना आकाश के रंग नाल कीती, पर क्या आकाश ब्लू है? इस स्काई ब्लू छोटे छोटे बच्चों दी स्कूल दी किताबां तुसीं पढ़ोगे, उत्थों ही तुहानूं पता लग जाएगा स्काई इज़ नॉट ब्लू। आकाश नीला नहीं है, भास रहा है नीले वर्गा। इस तरह संसार सुपने दे न्याई है, सच प्रतीत हो रहा है। साडा वजूद एक सुपने दे न्याई है, अज हाँ कल नहीं रहांगे। यह शरीर एक सुपने दे न्याई है, यह माया है। माया जो पल पल अपना रंग बदलती है, जो सदीवी नहीं है। ताई तो पाशा सुपने जो संसार सुपने नाल कंपेयर किया, असीं उन्होंने सच मनी बैठे हैं। बस यही साड़ी भूल है, ऐसे करके जीवन ही दुख है। यही दुख का मूल कारण है कि जो नहीं है उन्होंने सच मान के पकड़ी बैठे। यह नहीं कि संसार नूं भज जाना छोड़ के। संसार विच रहिंदियां बादशाह ने सिद्धां नूं समझाया, जैसे जलते कमल निरालम मुरगाई नैसाने, सूरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम वखाने। जिस तरह मुरगाबी पंछी या बतख डुबकी लांदे पानी विच ते फिर उहदे पंख नहीं भीजदे, उड़ जाता है। कमल का फुल पानी में जन्म लैंदा है, उहदे डुबदा नहीं पानी में, पानी तो उत्ते रहता। जन्म पानी च है। साडा जीवन माया विच है, लेकिन माया तो निर्लेप हो के किवें जीना है, यह रस्ता मार बाणी दसदी। जब तक असी अपने सच दी विचार नहीं करांगे कि मैं कौन हाँ। थोड़ा इसनूं अज एक्सपैरीमेंट वो कि जंप ओवर करांगे तो मैं पढ़ी जावांगा, आप सुनी जाओगे, पर्पज सॉल्व नहीं होएगा। कल असी दृष्टि की मिसाल लई सी घड़ी की, अज उसे तो ही शुरू करिए। घड़ी असी देख रहे हैं, इसका मतलब असी घड़ी नहीं है। एक सिंपल थ्योरी है, सीयर कैनॉट बिकम सीनरी। दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। देखने वाला जो दिखाई दे रहा है वो नहीं होएगा। वो दिखाई ताई दे रहा है जो दिख रहा है, उस तो आप वाक। शरीर असी देख रहे हैं, इसका मतलब असी शरीर नहीं। मन दियां विचारां सानू पता नहीं साडे मन च की चल रहा है, इस करके असीं मन भी नहीं है। बुद्धि विच की निर्णय हो रहे ने असीं जानते, असली बुद्धि भी असीं नहीं है। इसनूं इस तरह पकड़ो, 3 अवस्थावां दा कल जिक्र होया सी। स्वपन, डीप स्लीप, गहरी नींद सुते पे, या जागते हैं या सुपना देख रहे हैं। तो मैं कल एक सवाल रहा सी कि कोई ऐसा लभो जिहड़ा इन्हां 3 अवस्थावां तो बाहर है, जिहड़ा ना सुपना देख रहा है, ना जागदा है और ना ही गहरी नींद सुता पिया। कोई है ऐसा तुहाडी निगाह विच?
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ ਨਾ। ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਰਤ ਸੀ, ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੂ ਵੀ ਆਰ, ਇਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਦਿਨ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਧ ਹੈ। ਇਹੀਓ ਕੰਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲੀ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਹੂ ਵੀ ਆਰ, ਅਵਰ ਟਰੂ ਸੈਲਫ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਲ, ਜਿਸ ਪਲ ਇਹ ਆਤਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਪਲ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਪਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਪਲ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਲ ਪਰਮਾਤਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ, ਆਤਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ, ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ, ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਵਾसी सदा अलेपा तो ही संग समाई। कितनी सुंदर व्याख्यान। मैं बार बार कथा च शब्द रिपीट करना इसे करके कि एक ऐसी मिसाल, सारी बाणी ही ब्रह्म रूप है और ब्रह्म लखांदी। और कोई पंक्ति हृदय जिमें होंदा ना, हृदय विन्या जाता है।
पातशाह कहते हैं फुल विच खुशबू की तरह परमेश्वर तेरे अंदर ही आ, पर तेरे कर्म च लिपायमान नहीं है। हमने बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पर गुरु तेग बहादुर साहब क्वेश्चन औखा नहीं है। वो कहते हैं मुकर माहे जैसे छाए, तेरे अंदर फुल की खुशबू वांगर है, पर निर्लेप किवें है जिवें शीशे विच तेरा अक्स है। शीशे दे विच हो के भी तू शीशे तो वख है, इस तरह परमात्मा तेरे अंदर हो के भी तेरे कर्म तो निर्लेप है, पर है इस तरह उहदे वजूद करके तेरा वजूद है। जब लग वस्या कंत घर, पंक्ति पढ़ते हो ना, जब लग वस्या कंत घर, जियो जियो सब कहात, जा उठ चलसी कंतड़ा, कोई ना पूछे तेरी बात। जदों तक परमेश्वरी रब्बी जोत साढ़े अंदर है। हुणे आरती का शब्द होया है, पढ़ो खा पंक्ति, सब में जोत, पढ़ो प्यार में, सब में जोत, जोत है सोए तिस दै चानन, सब में चानन। वो रब्बी जोत करके ही साढ़े अंदर चेतनता है, अदरवाइज ए डेड एंटिटी है। पंज तत्व डेड एंटिटी ने, और होर गहरे जाओगे तो मन ते बुद्धि भी जड़ जे, इनर्ट ने। चेतनता उसे परमेश्वर दी है, उसकी चेतनता करके मन भी कम कर रहा है, बुद्धि भी कम कर रही है, शरीर भी कम कर रहा है। और रब्बी जोत दे करके सब कुछ चल रहा है। सब में जो घट घट में हर जू बसे, तो जिस पल सानू यह ज्ञान हो गया, फिर हर रूप विच परमेश्वर दिखाई देगा। पत्ते पत्ते विच उसकी खुशबू आएगी। प्यारी साध संगत, लोड़ है जुड़न दी। कल मैं आया सी, भाई साहब शब्द पढ़ रहे सन कबीर साहब का, पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो। देखो गुरुआं ने, भगतां ने कितनी बरीक जाके गल नूं पकड़िया, तो सानू सामने साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर धन गुरु ग्रंथ साहब बैठा साढ़े सामने। दसे गुरु साहिबान साक्षात प्रगट ने, प्रगट गुरां की देश रोज पढ़ने हैं, असि तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। कीता है, ऐसिया कई रूहां होणगियां संगत जिन्होंने प्राप्त किया होगा, पर मेजॉरिटी तो मेरे वर्गियां नहीं, कुछ लै तो नहीं पाए। तो भगतां ने कित्थों पकड़िया? कहते ने पाती तोरे मालनी, एक मालन पत्तियां तोड़ रही सी, दुकान सी मंदिर के बाहर वेच के अपना गुजरान करती सी। कबीर कहते ने पाती तोरे मालनी, तैनू नहीं पता पाती पाती जियो, हर पत्ते विच जीवन है। पाती तोरे मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो, सतगुर जागता है देव। जो ना देवतियां की पूजा लई तो फुल तैयार कर रही हैं, माला तैयार कर रही हैं, गुलदस्ता तैयार कर रही हैं, ब्रह्मपाती वो ब्रह्म ते पत्तियां में बैठा है। बिशनडारी विष्णु भगवान डालियां में है, ब्रह्मपाती बिशनडारी फूल शंकर देव, फुल्लां में शंकर भगवान साक्षात है। तो तीन देव पर तख तोरे करे किसकी सेव? तीन देवते तो तोड़ के घर लै गई। फुल्लां में परमेश्वर की जोत है, सब में जोत है। ना समझना कि व्यक्ति जोत है, पशु पंछियां की उसी दी जोत है। घट घट में हर जू बसे, हर शरीर जर्रे जर्रे जो सदा नूर है, खाली देखन वाली बस। बाबा बुले शाह कहते ना, शौ बुले शाह थी वख नहीं, बिन शौ दे दूजा कख नहीं, पर वेखन वाली अख नहीं। कल एक ओंकार के विचार में बड़ी फास्ट की सी, क्योंकि टाइम थोड़ा है। वी हैव टू बाइंड अवर सेल्फ। नहीं तो एक दे विचार पातशाह ने एक सवाल उठाया, ऐसे सुखमनी साहब बहुत सुंदर, कभी अपने कार्य से इंट्रोस्पैक्शन करना थोड़ा जिना। पातशाह कहते ने नानक एको पसरिया दूजा कह दिसटा। एक ही तो सारे पासे पसरिया है, तेन दूजा नज़र किमें आ रहा है? बैठे पाए बस। जब तक दो नज़र आ रहे हैं समझना जो ज्ञान नहीं होया। भाई कन्हैया ने पूछा से ना पातशाह ने, कन्हैया किनू पानी पिलाए? भाई कन्हैया जी कहने पातशाह तैनू पिया पिलावा पर। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने
उस डायलॉग में कविता बनिया, कहना तैनू पिया पिलावा पानी सिर मेरे दे साई, वो तुरक अतुरक ना दिसदा मैनू तू सारे दिसिया। असे पत्थरां विच पंछियां विच फुल्लां विच रब कित्थे लभना, सानू ते बंदियां च रब नज़र नहीं आंदा। प्यारी साध संगत बाणी दी पंक्ति असे रोज़ बड़े रस नाल पढ़ने आ। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बने आई। पर किन्ने गुआ जिन्हां दी सब नाल बनदी है, ये फिर वितकरे वंडां झगड़े, भरा भरा दा वैरी है, जदादां दे झगड़े, ये की है? किसी की तरक्की देखी तो अंदरों रोस आ गया। इत्थे अरदास की, नानक नाम पढ़ो प्यारा, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का फल। तो सरबत का भला कितने गया? इत्थे ही रह गया। इसे करके आनंद साढ़े अंदर आया नहीं। इत्थे बह के पढ़ रहे हैं, आनंद आएगा। इत्थे गुरु का औरा है। ये आनंद घर तक नाल जाना चाहिए, जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। आनंद साडा मूल स्वरूप है। बानी की कह रही है, तू आनंद स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू सत स्वरूप है। धन गुरु नानक देव पातशाह ने तो इत्थे तक कह दिता, कथनी कहे कहे से मुँहे सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है, तू आप ही परमात्मा है। यानी संत सिंह मस्कीन बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। कहते मैं बाहरले किसी मुल्क ही सां ते कानपुर तो एक व्यक्ति का फोन आया, ज्ञानी जी सुनिया तुसी हाथ देख लेंदे हो, कोई भविख दस सकते हो? कहते ने तू अपना सवाल रख। ज्ञानी मस्कीन जी का अपना ढंग से बड़ा निराला है। कितनी तपस्या, 40 साल उन्हें कथा की थी। प्यारी साथ 40-42 साल, और बड़े खोजी तबीयत के बंदे सन, बड़े खोजी सन। हर धर्म के व्यक्ति नाल बैठे उठे तो कहन लगे, कहते तू अपना सवाल रख। कहना इंडिया कदों आ रहे हो, मैं कुछ जानना चाहना। कहते की जानना चाहना? कहते अपने भविष्य बारे पूछना है। कहते मैं इत्थों ही दस देना। की भविष्य तेरा? कहते तू एक दिन रब हो जाएगा, प्यार नाल आखो सतनाम। बड़ा हैरान होया, मैं रब हो जाऊँ? कहते नहीं, तू नहीं, तेरा सारा परिवार ही रब हो जाएगा। जा किड्डी बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन। साड़ी मंजिल वही होना है प्यारी सास। जब तक सानू ज्ञान नहीं होया, यह चक्कर चलता रहेगा, जन्म मरण का गेड़ पिया रहेगा। तो मनुष्य जीवन की जी दात है, पढ़ो प्यार नाल, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की भरिया, चिरंकाल ए दे सिंजरिया। तड़पे हाँ से शरीर वास्ते, तो जाई जाया जा रहा है, जाई जाया जा रहा है। से तो मैं कल ही मिसाल दी सी, चिड़ियाँ कां कबूतर भी अपना रोज़ी इकट्ठी कर लेंगे ने, बच्चे तो भी पालते हैं। इंसान हो के कुछ टाइम तो से कढ़िए अपने मूल में जानने वास्ते एक चौंकड़ा सवेरे 15 मिनट का ला के देखो तो सही। 15 मिनट तो शुरू हो जाओ भी अपने स्वरूप ही टिकना है, बस टिकना है। वाहिगुरु गुरु मंत्र ते मूल मंत्र का जाप, सब फैकल्टीज बाहर वालियां बंद कर देनी। बाहर भ्रम है, अंदर ब्रह्म है। सब कुछ करना, बाहर ना ही बाहर टोले सो भरम भुलाए। इसलिए अंदरों टिकांगे ना, धीरे 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 एक ज्ञान प्रगट होएगा, वो अनहद प्रगट होएगा, वो तत्व बुद्धि प्राप्त होएगी, जिस दे द्वारा उस एक नू जान लांगे। उन्हां दी अवस्था है, वो सिमरन जड़ा है इत्थे पहुँचा देगा। प्रभ सिमरत कश बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अंदिन जागे। फिर तो एक रस जीवन चलेगा। ऐ नहीं कि सोवांगे नहीं, उठत बैठत सोवत नाम, सुते पिया भी नाम चलता रहेगा। जिमें श्वास चलते रहते ना, कुछ श्वासा लैन वास्ते उठना तो नहीं पैंदा भी मैं 10 श्वास ले ला फिर सो जाऊँगा। सुते पिया भी श्वास चल, बेहोश के भी श्वास चलते पे ने। याद ऐसी गहरी हो जाएगी, उठत बैठत सोवत नाम।
गुरुदेव किरपा कर रहे ने, प्रभ के सिमरन भौ ना व्यापे। हुण भौ किहदा? निर्भो जपे सगल भौ मिटे। डर किहदा? जद ओहदे हो गए फिर डर किहदा? सर्व सृष्टि के स्वामी दा नाल साडे मिलाप हो गया, फिर डर किहदा बाकी रह गया? निर्भो जपे सगल भौ मिटे। और एक सिद्धांतक गल जो प्यारी साध संगत, मूल सिद्धांत नूं पकड़ लेना। बानी कहती ना, गुण कह गुनी समावनिया। जिदे गुण गाने हैं ना, गुण गांदे गांदे गुण गावत तेरी उतरस मैल। गुण गांदे गांदे वो गुनी दे विच असीं समा जाने। एक छोटे जे कीड़े की मिसाल लै रहे हैं प्यारी साथ, फिर मनुष्य ना एक छोटे जे कीड़े की मिसाल लैन लगा। भरिंगी कहते हैं उन्होंने, एक छोटा जिहा कीड़ा होंदा है। कभी पुराने घर तुसीं देखा होगा, दरवाजे के बाहर या किसी दीवार के कोने से ना एक मिट्टी का छोटा जिहा घोंसला जिहा बना लेंदा। वो की करता है, किसी भी कीड़े नूं पकड़ के ना उस घोंसले बंद कर देंदा, रस्ता बंद कर देंदा, तो वो बाहर कूं कूं आवाज़ करदा। अंदर बैठा कीड़ा डरी जाता, ये हुणे आएगा मैनूं मार देगा, हुणे आएगा मैनूं खा जाएगा। डर तो उहदी याद विच पिया रहिंदा। इतनी याद गहरी हो जाती, इतनी याद गहरी हो जाती, इतनी याद गहरी, उसका रूप हो जाता, उसके पर निकल आते हैं। जिस पल भरिंगी नूं पता लग जाता, पर निकल खोल देता, रस्ता उड़ जाना। प्यार नाल आखो सतनाम। एक कीड़ा जे किसी की याद में उसका रूप हो सकता, तो इंसान निर्भो जो पाशा से क्या, गुण कह गुनी समावनी। गुण गांदे गांदे असे गुनी में समा जावांगे। यह लाभ है कीर्तन करन दा, यह लाभ है उस्तति करन दा। मूल मंत्र सारे वो गुण ने। निर्भो जपे सगल भौ मिटे। जपी चलो कौन, देखो थोड़े डर किस तरह खत्म होते। यह आनंद जीवन का हिस्सा बन जाएगा प्यारी साध संगत। सुख दुख बहुत छोटी चीज़ है। सुख दुख कोई खेड ही है, ये तो खेड है। सुख दुख दो इधर कपड़े पहरे जाए मनुख, आज सुख है कल दुख भी होएगा, दुख है कल सुख भी होएगा। इतने ड्यूअलिटी है, जन्म है तो मरण भी है। ये कोई घबराने वाली गल नहीं। पकड़न वाली चीज़ है आनंद, सत्य, उमा, शांति, यह पकड़ना चाहिए। रूप है। गुरुदेव कृपा करे ने, प्रभ के सिमरन भौ ना व्यापै, प्रभ के सिमरन दुख ना संतापै। यह नहीं कह रहे कि दुख नहीं आएगा, दुख ना संतापै। दुख दुख महसूस नहीं होएगा। दुख जड़ा है वो दुख करके महसूस नहीं होगा। पातशाह ने क्या है, दुख दारू सुख रोग वे। कभी इस पंक्ति में विचारिया जी, बानी विचार की चीज़ है प्यारी संगत। विचार ही वो देश लै जाएगा। मैं कल भी क्या सी, तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। विचार, और इस विचार बारे शायद अगे भी मैं कई कथा विच जिक्र किया। एक बहुत बड़े विद्वान जो इंग्लिश विच धर्म ग्रंथों की बहुत पुस्तकां ग्रंथ लिखे उन्होंने, जदों विचार शब्द आया ना तो ठहर गया। कहने लगे यदि मैं ट्रांसलेशन कोई मैनू योग शब्द नज़र नहीं आ रहा इंग्लिश विच कि मैं इन्हूं ट्रांसलेट कर सकां। विचार हम देखो बड़ी सिंपल जा वर्ड है। बच्चे बैठे ने, किसी ने पूछा कि विचार इंग्लिश की कहते कॉम्प्रीहेंड करना या थिंकिंग, प्रोसैस ऑफ थिंकिंग। विचार नो, जेड़े अध्यात्म की दुनिया विचार है ना कुछ होर चीज़। वो इस तरह है जिमें फुल है। हम फुल तो सारे देखे, क्यों करके ऐसे घर लैके आने, फुलों नाल प्यार क्यों करते हैं? एक वो खूबसूरती करके, दूजी गल उहदे विच जिहड़ी खुशबू है वो करके। फुल नूं तोड़ के कर लिया उन्हें, मैं क्या पाती तोरे माल ने। पर एक चीज़ वो होर है, वो असी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन शहद की मक्खी हासिल कर लैंदी है। वो फुल नूं तोड़दी भी नहीं, फुल नूं मरोड़दी भी नहीं,
फुल विचों तत्व शहद कढ़ के लै जाती। है विचार तत्व पार लेना। कबीर साहब इसनों इस तरह कहते ने, ये अखर खिर जाएंगे वो खर इनमें ना है। जहाँ बोलते अखर आवा, जहाँ अबोलते मन न रहा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे न कोई। वो तेरे बोलन विच और तेरे चुप करन विच जिहड़ा तत्व है ना, उत्थे है परमात्मा का ज्ञान। असीं तो ना अजे बोल समझ सके तो ना अबोल समझ सके। जहाँ बोलते अखर आवा, जहाँ अबोलते मन न रहा वा। जिथे चुप, ए चुप नहीं साड़ी चुप, कीप क्वाइट नो। उनके निखित करता पाशाह ने पहली पौड़ी ची, चुप है चुप ना हो गई। जिथे मन भी नहीं रहा, इतनी शांति, इतनी चुप आ गई, साइलेंस। तेरी टोटल फैकल्टी साइलेंट हो गई। सब कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे तो बहुत छोटी गल है। तेरे अंतस्करण भी शांत हो गया, मन बुद्धि भी ठहर गई, श्वास भी एक रिदम में ठहर गए। उस अवस्था का ना है अबोल। उथे उथे परमात्मा का होन पता लगनी है। असीं तो बोलां च नहीं पकड़ पाया जी प्यारी साहब। असीं तो जो मंगते पे सानू पता नहीं अरदास कह की रहे। छोटी जी मिसाल दें तुम, जीवन कर लै जाना होमवर्क छोटा जहा। एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस विचार आई सी, साढ़े मुसलमान वीर जिस तरह से दसवंध कटते हैं, ज़कात कटते हैं। ज़कात होंदी है 2.5% ऑफ देयर टोटल वेल्थ। जिहड़े पाक नमाजी ने, जिहड़े रब नाल जुड़े ने, सही मैने च अल्लाह ताला नाल जुड़े ने, वो 2.5% अपनी इनकम का नहीं, अपनी टोटल वेल्थ का सेवा विच लगा दें। सेवा विच ते उन्होंने कोई विचार चली, कॉन्फ्रेंस की से सर्वधर्म सम्मेलन। तो उदों रमज़ान के दिन सन, तो मौलवी साहब आए सन। तो मैं कह दिता, मैं कि जे अज रमज़ान के दिन ने, इन्होंने फिर भी हिम्मत की, रोज़े रखे सन, आए। अज मैं एक गल संगत को दसनी चाहना कि सब तो वड्डी ज़कात किहड़ी। तो बड़े हैरान हो गए। वो कहने लगे तुहानू ज्ञान कित्थों मिलिया गया। मैं क्या तुसी तो इहनूं बहुत बड़ा ज्ञान की गल कह रहे हो। साडे गुरसिखां दी तो रोज़ की अरदास, साड़ी रोज़ की अरदास। वो ज़कात की है? फॉरगिवनेस, किसी की भुल नूं क्षमा कर देना, देख के अनडिठ करना। जिहड़ी उन्हां दे धर्म विच सब तो वड्डी पुण्य का काम है, वो साड़ी रोज़ की अरदास है। क्या असीं अपनी अरदास नाल जुड़े हैं प्यारी साहब से? विचारो। तो जे जुड़े हाँ, फिर असीं हर वेले नुक्स क्यों कढ़ने दूजे दे? दूजा इंज है जी, वो इंज करदा, वो इंज करदा, वो इंज करदा। तुहानूं अज दस दियां एक गल, मैं बच्चों नाल बहुत टाइम स्पेंड किया जे प्यारी साहब से वर्ल्ड ओवर कैंप्स भी कीते ने। बच्चों की एको शिकायत है, आवर पेरेंट्स आर जजमेंटल। वो दूजे दे नुक्स बड़े लगते हैं। गुरुद्वारे आ गए, हम तो संगत बैठी, थोड़ा लंगर हाल तक जावांगे, पता नहीं की हो जाता। फिर फलाने का इंज हो गया, फलाना इंज है, वो इंज करता, वो इंज करता। असीं की लेना? क्यों वो भार इकट्ठी करी जाने, जद कि रोज़ आसा की वार का कीर्तन करने, तो पंक्तियां पढ़ने। कन्नी सूतक पढ़ो प्यार ना, कन्नी सूतक कन पै लाए तबारी खाए, नानक हंसा आदमी बद्दे जमपुर जाए। लाए तबारी समझ दो, चुगली सुननी कन्ना द्वारा, कीती नहीं असे सुनी है। कन्नी कन द्वारा सुनी है, कन्नी सूतक कन की पवित्रता की गल कर रहे हैं पातशाह थे। सूतक पातक के फिर किसी वे खोल के विचार करांगे आसा की वार दे। तो उत्थे पातशाह कहते ने कन्नी सूतक, एक ने कीती चुगली किसी की, दूजे ने कान ला के सुनी। मैं ध्यान नहीं दिता की कह रहे हो। पातशाह की कहते ने, नानक हंसा आदमी, हंसा वर्गा तेरा जीवन सी, बद्दे जमपुर जाए, तेनू जमदूत बन के लै गए। प्यार नाल आखो सतनाम सिंह। इतनी बरीक है गुरसिख। असें बड़ा स्वाद लैने कि बई
फलाने के घर इंज हो गया, फलाने दे WhatsApp पे लगे रहने, वो की न्यूज़ आई है सब। वाई वी बॉदर अबाउट इट, यू नो, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट ऑल दिस। कोई की कर रहा है, वो कर्म ने। अरदास कर दो सतगुरु सब नूं सुमत दे, प्यार नाल आखो सतगुरु सरबत दा भला। क्यों करनी, अपना जीवन क्यों जाई कर रहे हैं? कर्म है। मन करके भी किसी का बुरा सोचा भी कर्म है, वह हिसाब भी देना पेगा। जे मन ही मन जपजी साहब का पाठ किया, जब मन ही मन जाप किया है, वह लाहा मिलता है। तो मन ही मन जे किसी को अपशब्द कहें तो वह हिसाब भी देना पैना। प्यारी साहब इतनी बरीक है गुरसिखी। गुरु नानक जगत गुरु ने वो एक एक पल सुचेत कर दें सानू। वो कहते हैं हर सिख उस अवस्था पर पहुँच जाए सचखंड। उसे बांध फड़ी है गुरु नानक दी। इत्थे कीर्तन चल रहा होंगे, साड़ा ध्यान लोगों च होंदा है। वो नहीं, इत्थे जो सुनांगे वो जीवन का हिस्सा बनेगा। वो सुनिया सवेरे से कमाना है। जिहड़ा मैं चौंकड़ा मारन की गल की ना, वो सुन के प्रेरणा लैके असें सवेरे चौंकड़ा बजेगा, मतलब नहीं बजेगा, मन शांति नहीं होएगा। जो इत्थे सुनिया गहराई नाल सुनना। अंतर प्रीत लगी प्रभ केरी, वो जी अंदर प्रीत जागती है ना, सुन गुर बचन मन प्रीत लगी है, मन तीर लगी है, अंदर तीर बजदा है। सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, कबीर सतगुर सूर में बाया बाण जो एक, लागत थी पोए गिर परा परा करे जे छेक, अंदर विनिया जावे, छेद छेद हो जाए, इतना बाणी का तीर बजे अंदर। साड़ी अवस्था बाहर एक साखी आती बड़ी प्यारी। बाबा सुथरे शाह का नाम तो सुने होना, वो बड़े हसाते सन संगत। गुरु प्यार भी बड़ा करता, कोई गल सच नहीं करते सन। जिन्हों असे भेद भी समझने गुरु को उस शाबाशी देंगे सन। क्यों कि वह दिल साफ से, वो गल के पिछे राज होंदा सी। एक दिन संगत ही बैठे बैठे तो दूजे बड़े सेवादार चिढ़ते सन भी एक शरारतां भी बड़ियां करता है तो काम भी नहीं करता, तो गुरु तां भी उन्होंने लाड करता। गुरु लाड करता कोई कारण होएगा। संगत ही बैठे बैठे कीर्तन चल रहा सी, एकदम हाथ जोड़ के मुँहदे हो गए, फिर पिठ कर ली कीर्तनियां वाली। पिठ करके गुरु साहब भी इधर सजे सन दरबार, क्योंकि उस वे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज गुरु पदवी ते नहीं सन, गुरु साक्षात बैठे सन। तो कीर्तन हो रहा सी, पिठ कर ली कीर्तनियां वाली, फिर मोदे हो गए, फिर भज गए। सिंघां नूं बड़ा बुरा लगा। 10 15 20 दिन वो अंदर खिंचते रहे। भाई सतपाल सुथरे शाह 15 20 दिन बाद आए दरबार। कीर्तन की समाप्ति, दीवान समाप्ति हुई तो कहन लगे पातशाह अज सुथरे नूं पुछो इन्हें बेदबी की थी कि महाराज देखो इस तरह कीर्तन हो रहा सी, पिठ करके बह गया, फिर एक्टिंग करता सी। गुरु साहब जानी जान सन कहन 10 भी सुथरिया, उन्हें हाथ बन लगे। पातशाह भुल हो गई, खिमा देना, पर पहले मेरा एक सवाल है, मैनू कुछ याद नहीं आ रहा की कह रहे हैं। आप जी कृपा करो इन्होंने पुछो उस दिन गुरु की बाणी का केड़ा शब्द चल रहा है। हम शब्द तो किसी को याद ही नहीं, किसी को याद नहीं भी ये शब्द केड़ा चल रहा है। और सच्चाई जी सानू को पूछना कल महाराज का की हुक्मनामा से अद्धिया याद नहीं होता। महीना पहले किसी ने शब्द के वो याद होंगे ने। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर धन गुरु ग्रंथ साहब ने कल की हुक्म सुनाया याद नहीं होता। होर दस दें इस तो बरीक चलना। मैं गृहस्थी हाँ प्यारी साध संगत, गलियां बड़ियां स्पष्ट करांगा जो मैं जीवन छोंदियां देखना। मैं सवाल तो मैं अपनी माँ को भी पूछ लिया सी। अज 20 साल तो उत्ते हो गए मेरी माँ को गया संसार, 30 साल हो गए। मैं अपनी माँ को भी पूछा सी। डायरियां बनिया हुई साढ़े घर फलाना ए सगन पा गया, फलाना ए सगन पा गया, फलाना ए सगन पा गया। असें भी वो घर इन्ना ही सगन पाना है। डायरियां बनिया हुण तो खैर पैसे की वैल्यू नहीं रह गई, हुण तो कोई पूछता ही नहीं ना। अगे लोग लिखते सन, हुण मैं नहीं पता कोई 2-4 परिवार लिखते हो। बाकी अजकल पैसा इन्ना आम हो गया, कोई गिनती रही कोई नहीं कि ना खर्चियां की गिनती रही है तो ना सगना की गिनती रही है। खैर
मेरा फिर अंदर एक सवाल जागया भी जे सगन लिखे ही ने तो बच्चे का विआह होया या कोई होर कारज होया, गुरु ने की सगन पाया याद है किधर, लिखिया किधर? बच्चे का आनंद कारज आ मान लो, उत्थे तो गुरु ने 2 लिफाफे दिते, कितने नोट किए ने। एक अरदास वेले कि बच्चों आनंद कारज पहली अरदास पता क्यों होंगी? साढ़े सिक्खी विच यह बड़ा बड़ा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जे। पहली अरदास होंदी है कि जिहड़ी विवाह हो रहा है, आनंद कारज हो रहा है, यह बच्चे बच्ची तो उहदे माँ प्यो की मर्जी नाल हो रहा है। तां ही बच्चे बच्ची दोनों के माँ प्यो तो बच्चे बच्ची आप खड़े होंदे, बाकी संगत खड़ी नहीं होंदी। हुक्मनामा लिया जाता, गुरु का पहला सगन होंदा। फिर आनंद कारज होने तो बाद दूजा हुक्मनामा अरदास होंदी, पातशाह बच्चों का जीवन सफलतापूर्वक बीते। गुरु अपने हुक्म की मोहर लाता है। किसी ने नोट किया कभी कि साढ़े बच्चों के ब्याह से गुरु ने की सगन पाया? बाबा सुथरे शाह पूछन लगे, पातशाह ने पूछो हुक्म की आया सी उस दिन, शब्द केड़ा पढ़ रहे सन रागी से? हुण किसी ने नहीं, गुरु साहब ने फिर भी जान ही जान से कहते सुथरा तू दस, तू इंज क्यों किया? कहता महाराज की दसा, शब्द चल रहा सी, गली 80 चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसुद्धां कालियां बाहर चिटवियां, एडियां बाणी दियां चपेड़ा मूँह ते पै रही सन। मैं मूँह तो नहीं सहार सकिया, मैं सिर चुका लिया, फिर सिर ते सट्टां वजियां बाणी दियां, मैं पिठ कर ली, फिर पिठ से भी सट्टां वजियां बाणी दे तीर वजे, मैं बर्दाश्त में भज गया। धन गुरसिख ने जिहड़े रोज़ मूँह ते खांदे ने। प्यारी साध संगत, जिन्नियां साखियां जिन्हें इतिहासक, मेरा गुरु चोजी मेरे प्यारे आ, चोजी मेरे गोबिंद, वो तो समझाने का ढंग भी निराला जेगा। इत्थे आए हैं ना, इत्थे गुरु के शब्द नूं सुनना है, फिर सुन के उन्होंने कमाना है। वो 15 मिनट सवेरे मैं जी बेनती कर रहा, वो जो सुनिया है अगर अंदर बसेगा ना तो उतों निकलेगा वाह आश्चर्य है तू वाहिगुरु, तू ज्ञान का प्रकाश करने वाला है, वाह गुरु। मूल मंत्र के जाप चलणगे तो जो वो गुणा की गायन करांगे, वो धीरे 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 सारे गुण निर्भाव भी हो जाएंगे, निर्वैर भी हो जाएंगे। प्यार ना लागो सतनाम। मेरे गुरुदेव कृपा कर रहे ने, प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे। फिर दुख संताप नहीं देता, प्रभ का सिमरन साध के संग। ए जपन की जगह थे आके जपो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जब जाप हो जाए, जाप लिव हो जाए, उदों सोझी आएगी ये की कह रहे मेरे। उदों जीवन में मन भरीए मत पापा के संग, वो तोपे नावे के रंग। जो जाप लिव हो जाएगा ना, अंदर दी मैल कुदरती साफ हो जाएगी, फिर किसी के अवगुण नज़र ही नहीं आने। फिर तो हर एक चीज परमात्मा की सूरत ही नज़र आएगी। प्यारी साध संगत, प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हरन। यह जो रंग चढ़ता है ना, फिर सारे खजाने, सारिया बरकतां, रब्बी ज्ञान, दुनियावी धन दौलत, बाप मान सत्कार, सब कुछ पिछे तुरे आते हैं। प्यारी सास मगर तुरे आते। जो नाम का रंग चढ़ता है ना, उदों तो भगत नामदेव जी जिन्होंने धक्के मार के अगलिया ने मंदिर तो कढ़ दिता, उस नामदेव जी ने मेरे पातशाह ने श्री हरमंदिर साहब बिठा दिता। सारा संसार भगत नामदेव जी ने मत्थे टेकदा। की कसूर सी नामदेव जी का? आप कहते ने हसत खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी आदम राया, छीपे के जन्म काहे को आया। मैं तो हसदा खेडदा तेरे मंदिर च आया सा पातशाह, मैनू भगती करते उन्होंने धक्के मार के कढ़ दिता। क्यों कढ़ दिता? मैं छोटी जादा सा, मैनू छोटी कुल क्यों भेजा मेरे मालक, तू इस तरह क्यों किया। लै कमली चलियो पलटाए, देहरे पाछे बैठा जाए। तो फिर उत्थे की होया, जो रंग चढ़िया नाम का, पढ़ो प्यार नाल,
ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे भगत जना को दोहरा फिरे। मंदिर का मुख ही दूजे पासे हो गया। अज भी जाके स्थान देख रहे ना भगत नामदेव जी का मंदिर दूजे पासे। यह जपन दा लाए ने प्यारी साध संगत। प्रभ के सिमरन रिध सिद्ध नौ निध, 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ। पढ़ो खा पंक्तियाँ। ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए नव निधि 18 सिद्धि। पिछे लगियां फिरे जो हर हृदय सदा बस। यह जपन दे लाभे दस रहे पातशाह लाहे। प्रभ कै सिमरन रिध सिद्ध नौ निध। ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी होए ने साढ़े सेवापंथियों च साधु। संत संगत सिंह जी कमालिए वाले गुरमत ज्ञान इन्होंने जिथों दास ने विद्या की प्रेरणा ली है ना, टिकाणा साहब पंजाबी विभाग श्रीमान महंत हरबंस सिंह जी पासों प्रेरणा लैके इस पासे मैं तुरया। उस तरह मेरा टकसाल भाई मनी सिंह जी टकसाल नाल संबंध जुड़ता है। पर वो भी सेवापंथी साधु संत सारे, ज्ञानी अमीर सिंह साहब, ज्ञानी किरपाल सिंह जी महाराज तो संत संगत सिंह जी नूं विद्या की दात जिहड़ी है गुरमत विद्या बाबा फतेह चंद साहब टिकाणा साहब शाह जीवने वालियां ने बख्शिश की सी। उन्होंने जीवन की घटना ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी उस दिन कथा ही सुना रहे सन। कहते एक स्थान पर कथा करन गए तो एक मुसलमान अराई हाथ जोड़ के बैठा है, बड़ा उदास, अखां च जल बह रहा है। सुभावक संतां ने पूछ लिया भाई क्यों दुखी है? न महाराज ना रोज़ी रही ना रोज़गार रहा, घर भी कुछ नहीं पिया, जरदर धक्के खा रहा, कुछ सोझ ही नहीं आ रही। इज्जत मान मर्यादा बड़ी सी, निर्धन आदर कोई ना दे, बानी कह रही पैसे। तो बानी भी ये गल तस्दीक कर दी है, गरीब को कोई इज्जत नहीं देना। इसलिए पातशाह ने कहा है साजनो तू मीत मेरा ग्रह तेरे सबके मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे। पर हंकार का कारण ना बन जाए सब चीज़ां, एक गुजरान का कारण। सत संगत सिंह जी कहन लगे भाई कुछ दिन असें कथा करनी है, इत्थे एक तेन जगह दे देने जो मियाँ बीबी इत्थे रहो, नाले सेवा करो नाले सत्संग कीर्तन सुनो। हुण मुसलमान सी पर लिव जुड़ गई, वो सेवा में जुड़ गया, भांडे मांजे, बर्तन साफ करे, झाड़ू पोकर करे। कुछ दिनों बाद उत्थे कोई जगीरदार आया, उन्हें देखा बड़ी श्रद्धा भावनी नाल सेवा कर रहा है। कहने लगा भी की काम करना है रोटी गुजरान? कहता लभदा पिया, वो अपने को लै गया। कहते कुछ सालों बाद भाई बाग संगत सिंह जी ने जो पूछा ना भी कोई मैनू ऐसी विधि दे दो कि मेरे कपाट खुल जान, मेरे सारे पुराने जो मेरे पाप ने धुल जान। तो बाबा संगत सिंह जी कमालिए वाले ने यह पंक्ति दे दी, प्रभ कै सिमरन रिध सिद्ध नौ ने। यह जपया कर सवेरे शाम उठद्या बैठद्या ऐसे एक पंक्ति का जाप करें। करते 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 ऐसी भाग जागे, वो जमींदार जड़ा ऐसी वो नाल लै गया, उन्हें जगह भी दे दी रहन, मजदूरी रोज़गार भी चल पाया। कहते कुछ सालों बाद संत जी फिर आए कथा करन, तो हुण वो धनवान हो गया, परिवार वाला हो गया, इज्जत मान सत्कार भी प्राप्त हो गया। फिर आया कहता बाबा जी पछाणिया? कहने लगे नहीं पाए। दसिया उन्हें, बड़े खुश होए महापुरुष। कहता हुण ऐसी कृपा करो कि जिदा कलाम है ना उसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। बस फिर दूजी पंक्ति, प्रभ कै सिमरन, पढ़ो प्यार नाल, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। ये सारिया चीज़ां प्राप्त हो जांदियां ने जो गुरु के चरणों नाल जुड़ने। ज्ञानी जी ने बड़ी सुंदर भावना में कथा अपनी सीडी विच भरी है और हवाला दिता है अकाली लीडर सन मास्टर तारा सिंह, उन्होंने भाई साहब ज्ञानी निरंजन सिंह जी के ग्रंथ
होर भी 2-3 ग्रंथों का उन्होंने वेरवा दिता। भाई साहब भाई वीर सिंह जी का भी कि ऐ सन संगत सिंह जी कमालिए वालिया ने उस मुसलमान राही ते किरपा की। बानी प्यारी साध संगत बरकतां भरी बानी जी। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व 9 निधियाँ 18 सिद्धियाँ, ये सारे खजाने। पर रिधियाँ सिद्धियाँ की वरतों असें नहीं करनी, एक गल ध्यान रखना। रिधियाँ सिद्धियाँ नावें दी दासियां ने, मगर तुरदियाँ जपन वालियां दे। तुसीं एक चौंकड़ा मार के 40 दिन जपजी साहब का पाठ करके देखो, तुहाडे मगर शक्तियाँ तुरनगियां, मगर पर वरतों नहीं करनी। गुरमत मनाही है, भगती जाई होंदी है। भगती करनी उहदी प्राप्ति लई, ना कि दुनिया नूं चमत्कार दिखाण लई। दुनिया नूं जित्तिया नहीं गल बननी, मन जीते जग जीत, मन जीते। प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध, प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा। जितने लाहे भी ने जप दे तप दे पूजा दे, वो सारे प्रभु की याद विच, प्रभु का नाम जपन विच वो फल सारे प्राप्त होंदे ने। उस तो वड्डी दात की प्राप्त होती है, प्रभ कै सिमरन बिन से दूजा। दूजा भाव कि मैं अपने प्रभु तो वख हाँ, यही भुलेखा है ना। सत ते असत दी विचार यह प्राप्त होएगी। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, 68 तीर्थों का पुण्य है। तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। 68 तीर्थों का पुण्य है नाम जपना। प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, फिर संसार च नहीं दरगाह में जो तेनों मान मिलेगा। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, फिर जो होएगा ना तेरे अंदरों ही निकलेगा। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जपो प्यार नाल, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जा सुख दे तो तुझे राधे, दुख भी तुझे त्याई। जां भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। यह अवस्था बन जाएगी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। सुभावक ही तेरे चंगे कर्मां का फल तेरे अगे प्रगट हो जाएगा। सो से सिमरे जिन आप सिमरा है। पर मेरे गुरुदेव कहते ने सिमरेगा कौन, जिसते वो कृपा करेगा। से सिमरे जिन आप सिमराए। तो सिमरन वालियां नूं कितनी वडियाई दे रहे पातशाह कहते ने, नानक ताकै लागों पाए। उन्होंने मैं चरण छूना वा। प्रभ कै सिमरन सब ते ऊँचा है, सब तो ऊँची अवस्था है। छोटी गल ना समझना। जिन्नी नाम पढ़ो प्यार ना, जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत घाल है, करड़ी घाल जे। ऐ ना समझ लेना 15 मिनट वाहिगुरू जप लिया तो साड़ा जाप हो गया, नहीं। बिरती तुहाडी एक मन एक चित्त, एक चित्त। गुरु कलगीधर पातशाह दे की वचन ने, एक चित्त जे एक खिन त्यायो, काल फास के बीच ना आयो। यह जो जपना ना से उस एक क्षण वास्ते जपना है। जिवें कल दही की गल हुई सी ना, इन्नी जिन्नी जाग बस एक किनका बस जाए, एक बीज धरती के अंदर चला जाए, पेड़ बन के ही बाहर आए। वो पेड़ बन के ही बाहर आए। पेड़ की है कि बीज ही तो है, एक बीज ही तो है ना पेड़। जिसमें भगत कबीर जी ने किया, ब्राह्मण ने पूछा मेरे रब कोई रब बारे दसो। कहते बटक बीज में रब रहो, जागा 3 लोग विस्तार। एक पेड़ के बीज मात्र विच जिवें पेड़ बीज पेड़ फसिया, इस तरह छोटा सूक्ष्म जिहा परमेश्वर सारी सृष्टि का स्वामी इतना सूक्ष्म है कि ना अखां देख सकती हैं, ना कन्ना द्वारा सुनिया जा सकता है, ना हत्थां पैरां द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता। इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म। तो सारी सृष्टि उसी दी रची हुई है। पातशाह कह रहे ने प्रभ का सिमरन सब तो ऊँचा, सब तो ऊँची अवस्था दे अंदर। प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। मूचा भाव बहुत, एक्चुअली ये मूचा शब्द सिंधी भाषा का, इसका मतलब होंगे ढेर। ढेर मतलब बहुत ज़्यादा। प्रभ का सिमरन, प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। अनेकां ही जिन्हां दी गिनती नहीं उसकी, इतने तर गए सिमरन कर करके। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझे। जिहड़ी तृष्णा है ना, भाषा बाणी कहते तृष्णा बिरले ही की बुझी है।
तृष्णा भी शांत हो जाएगी प्यारी साथ। वड्डियां वड्डियां इच्छावां रखनियां कोई बहादुरी नहीं है। इच्छा ही ना रहे अंदर, इच्छा ही आसा माहे निराशा वाली अवस्था में एक ही इच्छा होवे परमेश्वर प्राप्ति दी। ये इच्छावां ही ने जिहड़ियां साडे और परमेश्वर के मिलाप विच रुकावट। एक इच्छा पूरी होंदी है 100 खड़ियां हो जांदियां। अंग्रेजी पढ़ते सन बच्चे छोटे होंदे सन, जिन्हां बच्चों ने इकनॉमिक्स पढ़ी है, वांट्स आर अनलिमिटेड। असीं बचपन ही पढ़ते सन हायर सकैंडरी दी बुक्स इकनॉमिक्स दी। वांट्स आर अनलिमिटेड। इच्छावां कभी शांत नहीं होंदियां। एक इच्छा हुई, अज इच्छा की गड्डी चाहिए, गड्डी मिल गई, नहीं हुण तो वड्डी गड्डी चाहिए, कैमरी चाहिए, हुण कैमरी आ गई, कहते नहीं हुण तो मर्सिडीज़ चाहिए। मर्सिडीज़ लई सी पता लगा फलाने दोस्त ने रॉल्स रॉयस या बेंटले ले ली, हुण बेंटले चाहिए। मैनू 100 गज का मकान चाहिए, कहते नहीं वो तो दूजे ने 500 गज का लिया, कहते वो तो फार्म हाउस ले लिया 100 एकड़ का। चलो उत्थे 100 करोड़ का फार्म हाउस ले लिया, मैं भी लेना। एंड कित्थे है? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। इच्छावां नहीं, तृष्णा मूलों ही बुझ जाएगी। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब कुछ सुने। सुने धरत धवल आकाश, मन्ने सगल भवन की सुध। सारी सृष्टि की हो रहा है, मनन वाले दे अंदर के सब इंज प्रगट हो जाता है जिमें सामने पई कोई किताब पढ़ रहे हैं। ऐसे महापुरुष जो इत्थे बैठे हो तो तुसी अमरीका बैठे की खबर उन्होंने होंगी। मैं जीवन में वरत्या प्यारी साध संगत, ज़्यादा भी लंबा ना करा कथा नूं, पर एक बारी मेरे नाल ऐसा बीतिया। मैं एक यात्रा ते गया तो उत्थे मैनू एक आश्रम में ठहरन का मौका मिलिया। उत्थों के जो महात्मा सन बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन। तो मैंने दिल्लियों मान दरबान सिंह जी ने फ़ोन किया, पाल जी कित्थे हो? जा रहे सन हजूर साहब जी यात्रा ते, रस्ते च अहमदनगर से रुक गए तो कह लगे जिथे ठहरे हो ना इत्थे कुछ दिन रुकना, इन्हां महापुरुषों पास बड़ा ज्ञान जे। मैं फिर उन्होंने महापुरुष मैं कहा कभी मिले हो मान साहब नूं? कहंदे नहीं मिले, कभी नहीं मिले। ज्ञान मन्ना सगल भवन की सुध, जिन्हों ने अवस्था पाई है प्यारी साध संगत, वो दूर बैठिया ही थोड़े बारे सब कुछ जाना। तो गुरु की क्या बात, एक बार दिल करके मन करके गुरु नानक नूं अपनी बिरथा दसो तो सही, जुड़े हुए मन गुरु नानक प्रगट हो जाएंगे। प्यारी साध उत्थे प्यार गोबिंद भाव भगत का भुखा, उत्थे प्यार का बद्दा की नहीं कर देंदा। प्यारी साध संगत मेरे गुरुदेव कृपा करें, प्रभ के सिमरन सब कुछ सुझै। प्रभ के सिमरन ना ही जम त्रासा, जमदा ते डर मूलों ही खत्म हो जाता है। प्यारी साध संगत प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा। हुण ते अवस्था है जो मांगे, पढ़ो प्यार नाल, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै। नानक दास मुख तेजो भुलै, इहाँ उहाँ सच। दास दासा भाव जागेगा, दास होवांगे तो मुँह मंगी मुराद मिलेगी। दासा भाव तो जो दास हो जावांगे ना फिर इच्छा भी केवल एक रह जाएगी। गुरु अंगद देव पातशाह के बचन असी आसा दी वारी पढ़ने हैं ना, एक किन्ने ही दात पढ़ते हो ना पंक्तियां, एक किन्ने ही दात आपस ते जो पाइए। जिहड़ी मंग के लिए पातशाह केड़ी दात होई, एक किन्ने ही दात आपस ते जो पाइए। नानक साकर मात साहिब तुठे जो मिले, जो तू खुश होके दवे ना वो दात है। फिर गुरु नानक जिन्होंने इस तरह मंगया ना, भाई लहने ने अपना रूप ही दे देता। प्यारी साध संगत लहने को अपने अंग लगा, लहने को अंगद कर दिया। यह तो पैमाना है साड़ी पहुँच। जड़े अच्छे कलाम गाते सन नुसरत साहब, उन्होंने एक कलाम बड़ा अच्छा प्यारा लगता मैनू। कहते ने जिसकी पहुँच जहाँ तलक उसके लिए तू वहाँ तलक। छोटी जी साखी भाई लहना जी के जीवन तो मैं शेयर कर रहा। प्यारी साध संगत एक दिन मौज च बैठे सन गुरु नानक साहब,
कोई गुरसिख संगत जुड़ी सी, गुरसिख ने कुछ माया अगे भेंट की, पातशाह ने चुक के मुट्ठी बंद कर दी। आवाज़ मारी, दसो साड़ी मुट्ठी च की है। हुण कोई बोले जी रुपया है, कोई कहता 10 रुपये ने, कोई सोने की मोहर है, कोई चांदी का सिक्का है। अपना अपना गवेट सारे ला रहे हैं। 10 पाई लैने आ साड़ी मुट्ठी च की, 10 पाई लैना जी दे हाथ जुड़ गए। पातशाह एडा वड्डा इम्तिहान, एडा वड्डा इम्तिहान। गुरु नानक दी मुट्ठी होवे ते मैं सेवक की दसां तेरी मुट्ठी च की है। एडा इम्तिहान मेरा ना लै, अखां जल आ गया। नहीं पाई लैना, हुक्म है दसो। जिसले 2 बारी बचन गुरुदेव ने कीता ना, पाई लैना जी दे नैन भारा है, गल च पल्ला पा लिया। 2 हाथ जोड़ के नेत्र मूंद के चरना का ध्यान दे के कहते ने पातशाह जे अज पुछदे ही हो ना तो गुरु नानक तेरी मुट्ठी विच सृष्टि का राज है, सृष्टि का राज है गुरु नानक तेरी मुट्ठी विच। लैने तू जाने तो लै राज तेरा होया, प्यार नाल आखो सतनाम। गुरु नानक को मंग के देखो तो सही, वो सब कुछ दे सकता, सब कुछ देंदा। प्यारी साध संगत, साडी झोली छोटी, सानू मंगन की जाच नहीं जे आई, साडी झोली बहुत छोटी है। मेरे गुरुदेव कहते ने प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उधरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सबकी सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा। सारियां शामां पूरियां होंदियां ने। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अंदर दी मैल भी चली जाती है, धुल जाती है अंदर दी मैल। भरी है मत, पढ़ो प्यार नाल, भरी है मत पापा के संग वो तो पै नावे के। एक साइंटिफिक गल पढ़े ना शेयर कर रहे हैं। कभी विचार होए बड़ी छोटी छोटी चीज़ा ने ना, इन्हों घर ले जाके सोचा जी बच्चों नाल इंटरैक्ट कर, बड़े बच्चे खुश होंगे। मैं तो अपन भैनों भी कहना, सुखमनी साहब का जो पाठ की किटी करते हो ना, आपस में भैन कट्ठिया होंगे, वीर कट्ठे होंगे, उत्थे छोटा जिहा क्विज कंपीटीशन रख दिया करो, बच्चे बड़े इंटरस्ट लेंदे। साढ़े अंदर प्रोसैस किवें हुण जे सपोज मैं मन च बैठे बैठे मेरे विचार उठे कि मैं अमेरिका जाना है, तो मैं किसी ने भी पूछांगा तो एको गल कहेगा, वीर जी मैं की करा, वट इज़ द फर्स्ट स्टैप। वो कहेगा वीर जी वीज़ा लवाओ। वीज़ा तो मेरे को है, हाँ मैं ग्रीन कार्ड होल्डर। फिर उनकी करिए, कहने लगे जी टिकट लवो। उस तो पहले विचार उठा अमेरिका जाना, पर इस विचार तो भी पहले की उठा, विचार कित्थों आई, यह सोचो। यह होमवर्क है, विचार आई क्यों? अंदर अमेरिका दे संस्कार, अंदर संस्कार कि मेरा उत्थे संगत नाल प्यार है, बच्चों के कैंप लाने ने, बच्चे याद कर रहे हैं, दोस्त सज्जन मित्र याद कर रहे हैं, बेटा बैठा है उन्हें याद किया, कुछ संस्कार अंदर पे ना। इस संस्कार ने मत, ये साढ़े बिलीफ, इत्थे जिहो जे संस्कार होणगे उहो जिहा जन्म, तो जिहो जे संस्कार होणगे उहो जे फुरने उठणगे। उस संस्कारां करके पातशाह कहते ना, भाई साहब भाई गुरदास की बाणी चाहता है वासना बद्धा आवे जाए। ये साड़ियाँ वासनावां ने, एक गलत मोटिवेशन समझदियां। संगत च बहने वो अंदर की गलत मोटिवेशन खत्म होके अच्छी मोटिवेशन आती है। चल भाई अज गुरुद्वारे चलने, चल भी अज थोड़ी देर ना भांडे मांजने, अज थोड़ी देर शीशे गुरुद्वारे के साफ करने, चल भैन रिश्तेदारों के घर से बड़े गुलदस्ते लै गए, अज ना 4 प्लांट्स अपने गुरुद्वारा साहब लैके जाने हैं, तो रोज़ आके सवेरे पानी आप दिया करांगे। देखो ये भी तो घर है ना साडा। अंदर अच्छी मोटिवेशन आएगी, कित्थों आएगी? जो अंदर संस्कार अच्छे होंगे। तो नाम जपदे जपदे गुरुदेव कहते ने ये भरी है मत पापा के संग वो तोपे नावे, मन तोवो शब्द लागो हरस्यों रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा ए बजाए। ए डाउट सहसा कहते डाउट्स नूं
ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਧੁਲੇਗਾ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ तो फिर ये डाउट्स खत्म होंगे, सच प्रगट हो जाएगा। प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाए इसमाए। हुण स्थान बन गया जिथे मेरे गुरु नानक ने आसन बनाने। घर कोई मेहमान आंदा से लगते हैं सफाइयाँ करन, पर जो गुरु नानक नूं आवाज़ देने हैं तो गुरु नानक ने तो तुहाडे घर सोफे थोड़ी बहना, उन्होंने तो असीं बिठाना है अपने मेरे हिरदे बसो गोपाल। तो अंदर भरिया पिया है, फलाना नहीं चंगा, फलाना नहीं चंगा, फलाना इंज, फलाना इंज। मैनू उन्हें यह गल कही सी, 10-10 साल नहीं भुलते। इनू असीं कहने इमोशनल बैग। उन तो भैने तेरे गोडे दुखते हैं, उंज तू इन्ना वजन चुकी फिरनी सिर ते, क्यों गई। भुल जाओ जिसे नफरत ने गोलक ही पाया। इत्थे एक चीज़ अपने धन तो गुरु तो दिता है ना, वो पाया। ये जिहड़ियां अंदर दवेश ने ना, ईर्खा दवेश, गोलक पा के ना किसी एक नूं अज फोन कर देना कि भाई तेरा साडा जो भी तकरार है ना खत्म, मेरा मन साफ। उस पल गुरु नानक की जगह बन जाएगी बेटा। इतनी शांति, इतना आनंद, इतना खेड़ा, इतना उमा। जिन्नियां टेंशनां ने ना, यही ब्लड प्रेशर का कारण जे, यही तुहाडे कोलेस्ट्रॉल का कारण है, यही शुगर लेवल बदन का कारण है। प्यारी साध संगत, मैं थोड़ा जिन्होंने हंकार ना समझना, 9 महीने बैठते रहे हैं, 9 महीने। तो डॉक्टर ने इन्नी सख्त हिदायत दी सी, थले कदम पुटना तो किसी का सहारा ले बैड तो थले नहीं उतरना, चक्कर आते थे। एक दिन फैसला किया, मैं क्या मंजे ते मरन तो चंगा है तुरदे फिरदे मरीए। फैसला कर लिया, ग्रेटर कैलाश फाउंडेशन में कथा करन आ रहे हैं जी, आओ जी। प्यारी साध संगत, मई महीने की गल जे। उसके बाद तो फिर एक दिन भी घर नहीं बैठा, 2-2 बारी गुड़गांव तो आना ग्रेटर कैलाश, फिर वापस जाना, फिर शामां नूं डिफेंस कलोनी आना कथा करनी, फिर गुड़गांव वापस जाना। जांदा वापस इसलिए सा कि घर पत्नी वो भी बीमार सी, उन्होंने फिक्र होंदी सी कि घर भी संभालना ना, बच्चे भी संभालने ने, बेटी भी देखनी, नहीं थोड़ा ध्यान रखिए। चलो दवाई उन्होंने भी लई टाइम सिर, उन्होंने मेरी फिक्र होंदी सी, मैं टाइम सिर दवाई लई। एक दूजे पति पत्नी का सहारा बन के जीवन चलता है। उन्हें गुरु नानक ने मैंने दाद दी ना पत्नी की, बस फिर वो, पर मैं बेनती कर रहा, उसकी अपार शक्तियाँ ने, अपार रहमतां ने उस दियाँ। यह गिले शिकवे थे पा दिओ, यह शरीर भी निरोगी हो जाएगा तो अंदर मन भी निरोगी हो जाएगा। गुरु नानक दे बहन की जगह बन जाएगी। मेरे पातशाह बख्शिश करते हैं, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिदमाए समाए, प्रभ जी बसै साध की रसना। तो फिर कित्थे बसेगा मेरा गुरु नानक? साध ही। साध कौन? जिन्हें जीवन में साध लिया। जिस पल असी अंदरों मैल कढ़ देती, साडा जीवन एक डिसिपलिन हो गया, साड़ी जेबा ते गुरु नानक आके बस गया। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंत। वो तनवान ने, प्रमाणित ने, जो सिमरन करते हैं। प्रभ के सिमरे से पतवंते, प्रधान पुरुष ने। प्रभ को सिमरे से जन परवान, उदी दरगाह परवान ने सिमरन वाले। प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान, वही फिर प्रमाणिक ने। प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, वो फिर किसी के मुताज नहीं रहते। प्यारी साध संगत, रंग हंसे रंग रोवे, चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी। बाज सच्चे नाए, दरवाट ऊपर खर्च मंगा, जबे दे ता खाए। दीवाने को कलम एका, हमा तुमा मेल, दर ले लेखा, पीड़ छुटे नानका ज्यों दे। बेमोहताज, बेपरवाह रहते हैं, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। बड़ा फर्क जे, बहुत बरीक जे। लापरवाही अवगुण है, बेपरवाही दैवी गुण है। बेपरवाह सदा रंग है। पातशाह कहना, प्रभ को सिमरे से बेमोहताज, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे। फिर वो सब दे दिलों ते राज करते हैं। प्यारी साध संगत, प्रभ को सिमरे से सुखवासी। फिर कभी उदास नहीं होंगे, वो सदा सुखां च, आनंद विच, खेड़े विच, खुशी विच, उमा विच। प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा विनाशी। फिर अविनाशी पदवी नूं प्राप्त होंदे ने, जिन्हां दा कदी नाश नहीं हो सकता। भाव अमृतत्व नूं प्राप्त होंदे ने। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला,
जिन्होंने उसने आप जोड़ लिया प्यारी साध संगत, जिन्होंने उसने आप गुरु नानक ने बांह पकड़ के, ए गुरुद्वारे तुसी आए हो ना, मत समझना अपने उद्यम ना लाए, अहंकार भी ना लिया। अज मैं गुरुद्वारे गया, अज मैं 1.5 घंटा कथा सुनी ना, कभी नहीं कहना। अज गुरु नानक ने कृपा की, उसने बांह पकड़ी, उन्हें अंदर बह के प्रेरणा दी, चल पई जुड़ संगति ते जप सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बेबी कीर्तन करती है, अपने ढंग नाल भजन गाती है, कहती जिस शख्स पे हो ऐ जग वालो कुछ खास इनायत सतगुर की, उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं। तुसी ते आके ना फतेह बुलाते ना गुरु नूं, उच्ची सारी तो बुला नहीं सकते, मत्था टेकन तो पहले फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, तो फिर मन ही मन शुकराना करो, वाहिगुरू तेरा शुक्र है, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जे तुमरे द्वारे आए। शुकराने विच जुड़ांगे, मन निमरता विच आएगा, सारियां ही दातां, सारियां ही दातां, ये सारी सृष्टि मेरे नानक ने तुहाडे सुख मानन लई रची है। सब कुछ राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन बिना, जिदे अंदर वस गया ना, वो सारी सृष्टि का रंग मानता। एक ऐसे ने गधे गधेलियां दे सौ के भी इंज सौंदे ने जिवें कंडियां दे बिस्तरे ते सुते। प्यारी साध संगत, 1 मिनट होर लै रहे हैं, दुनियावी मैसेज लै जाना। पैसे नाल मकान बनते ने, घर नहीं जे बनते। पैसे नाल बिस्तरे खरीदे जा सकते हैं, वधिया तो वधिया पलंग खरीदे जा सकते हैं, नींदर नहीं खरीदी जा सकती। पैसे नाल दवाइयाँ इलाज खरीदे जा सकते हैं, सेहत नहीं खरीदी जा सकती। वो तो जदों घर बनता प्यार नाल, आपसी प्यार होवे, इतफाक होवे, एक दूजे का पति पत्नी सत्कार करन, देखा देखी बच्चे तुहाडा सत्कार करनगे, अपने वड्डियां दा, अपने परिवार जनां दा, गुरु जनां दा, गुरु करके वजीरां दा, गुरु करके प्रबंधकां दा सत्कार करिए। वो भी अपना टाइम कढ़ के इत्थे दा प्रबंध चला रहे हैं, उन्हां वास्ते भी अरदास करिए। गुरु करके वजीर, ये सेवादार गुरु दे ने, साडे नहीं ने। प्यारी साध संगत ध्यान रखना, सेवादार गुरु दे ने। महाराजा रणजीत सिंह के जीवन की घटना है। एक उदास हो गया कोई गुरु का सेवादार, तो महाराजे को चलिया गया, कहना महाराजा मैनू कोई काम दे दे। कहता तू वास्ते सोहने काम लग्या, मेरे को की लेना है। कहता नहीं महाराजा पर गुजरारा नहीं चलता। अगे वो आंदा सी ते महाराजा रणजीत सिंह उठ के उन्होंने दरवाजे तो रिसीव करता। उन्होंने नौकरी कर ली महाराजे की। कुछ समा बीत गया, उन्होंने रवाजे महाराजे ने मिलना चाहे तो महाराजा मिले ना। अखीर एक दिन उन्हें क्या महाराजा अज तो मिलना ही है। जाके पूछता है, कहता बंदा मैं भी होई हो, तू ही होई हुई। अगे मैं आंदा सा तो उठ खलोंदा सा, हुण मैं मिलना चाहना तो उठ के मिलता नहीं। कहता अगे तू शहनशाह दे शहनशाह दा झाड़ू बरदार सा, हुण निमाणे रंजीते दा बड़ा फर्क पै गया। गुरु दे सेवादार, गुरु के वजीर, ऐसी भावना देखो मन किंज खिड़ेगा, कितना आनंद, जीवन आनंद हो जाएगा। प्यारी साध संगत, घर बनता है प्यार नाल, इतफाक नाल। एक शायर ने बहुत खूब लिखा है, न मिट्टी न गारा न सोना सजाना, जहाँ प्यार देखो वहीं घर बनाना। ये दिल की इमारत बनती है दिल से, दिलासों को छू के उम्मीदों से मिलके। जहाँ प्यार देखो वहीं घर बनाना। प्रभ कैसे सिमरन ते लागे, जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाने। आज इतनी सेवा परवान करनी प्यारी साध संगत। बानी अगाध बोध है, बानी पढ़द्या विचारद्या अनेकां अनेक भुलां हो जांदियां। आप संगत रूप हो, गुरु रूप हो, भुलां बख्श देनियां। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु ने कृपा की, आप दे प्यार दा सदका 5 पौड़ियां दी विचार अज होई है। 3 पौड़ियां कल विचारांगे प्यारी साध संगत। एक अष्टपदी दा वादा कीता सी प्रबंधक सजना नाल, ते तुहाडी
संगत की असीस मैं कहांगा, मेरी समर्थ नहीं, तुहाडी संगत की असीस सदका इस सेवा वाहिगुरू ने लई है। नहीं तो मेरे अंदर ऐसी कोई समर्थ नहीं कि गुरु की बाणी विचार सकां तो फिर इत्थे मंजिल तक पहुँच जाइए। क्योंकि डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, प्रबंधकों ने प्रबंध चलाना है, असी हुक्म विच बने रहना है, एक मर्यादा नूं नाल चलाना है। तो अगों फिर जैसे जैसे प्रबंधक सज्जन योग समझेंगे। कल जिथे संग्रांद का दिन मनाना है, महीने की विचार भी करांगे। भाई साहब भाई तारू सिंह जी का कल शहीदी पुरब है, कुछ थोड़ा जिहा इतिहास उन्होंने भी विचारांगे। तो रहिंदियां 3 पौड़ियां की विचार सुखमनी साहब की कल करके एक अष्टपदी की विचार कल संपन्न करांगे। आप अरदास करना, असीस देना, सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना, क्योंकि विच संगत हर प्रभ बसे जियो। जो संगत असीस की मोहर ला देंदी है ना, फिर मेरा गुरु सुन लैंदा। देहो सजन असीसड़ियाँ जो होवे साहिब सुमेल, देहो सजन असीसड़ियाँ जो होवे साहिब सुमेल। सरबत दा दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाओ असीस भरी फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।